Hello everyone, welcome to 3. This is Jyoti Mishra, and in this video we are going to discuss the poem by Donne, The Canonization. The Canonization जो है ये एक बेस्ट नोन पोम है जॉन डन की, एंड कॉलरिज जो है इसको बहुत एडमायर करते थे. इट्स अ लव पोम एक्सप्रेसिंग डन्स पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लव, an attitude of satisfaction and absorption in love relationship. क्रिटिक्स जो है इसको एक्सप्रेशन मानते हैं कि एन मोर के लिए जो इनका प्यार था और बाद में उनके साथ वो लव हो गए थे, इतनी डिवोटेडली उनको प्यार करते थे, बाद में मैरिज भी हुई, एंड ही ऑल्सो रूइंड हिज रेपुटेशन एंड फॉर्च्यून्स बिकॉज ऑफ दिस लव. बट कुछ क्लियर नहीं कह सकते हैं कि कितना इस चीज़ में रिलेशनशिप एग्जैक्टली सच बैठता है. एंड वन मोर थिंग इज़ देयर दैट देयर इज़ अ अंडरलाइंग पैराडॉक्स. पैराडॉक्स क्या होता है? एक सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट होता है. तो इस टाइटल में क्या है? पैराडॉक्स है. द टाइटल इटसेल्फ इज पैराडॉक्सिकल. कैसे है कि जो कैनोनाइजेशन है, इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू सेंट्स, एंड एज क्लिंट ब्रूक्स पॉइंट्स आउट, a clever paradox underlines the poem, for the poet daringly treats profane love as if it were divine love, and love of women is profane activity denounced by the church. चर्च इसके अगेंस्ट है, और जो कैननाइजेशन है वो रिलेटेड है चर्च से या सेंटहुड से. लेकिन यहाँ पर डन ने कैननाइजेशन को लव से रिलेट किया है. सो the lovers have not renounced the world as the saints do, and the pleasures of the flesh also. They indulge in the joys of love making. Still, they are called saints. And the poet Donne here cleverly argues his case and succeeds in establishing that devoted lovers, like poet and his beloved, are saints, though they are saints of love. Some important aspects of this poem are, in canonization, Donne sets up a 5-stanza argument to demonstrate the purity and power of his love for another. Secondly, each stanza begins and ends with the word love. Fourth and eighth line of each stanza ends with the word ending with OVE, and the pattern is consistently A, B, B, A, C, 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 A, A, all of which unifies the poem around the central theme, that is canonization. And the title, as I told you earlier, leads the reader to expect a poem connected with saints and holy practices. But the very first line sounds more like a line delivered on a stage, like a dialogue. The first line is, "For God's sake, hold your tongue," is nearly blasphemous when following the sacred title. And by the end of the poem, the reader is determined that canonization refers to the way that the poet's love will enter the canon of true love, becoming the pattern by which others judge their own love. So, this is how the title is related with the poem by the poet. So, let's read the poem now. For God's sake, hold your tongue and let me love. Poet is saying to someone, he is addressing to a friend or someone who is trying to dissuade him from love making, कि तुम चुप रहो और मुझे love making करने दो. Or tried my palsy or my gout or my 5 grey hairs. फिर वो कहता है पालसी क्या है, पालसी गाउट ये सब जो है ओल्ड एज के डिजीज़ हैं. पालसी में जो बॉडी है वो शिवर करती है. तो वो कहता है जिस तरह से ओल्ड एज के बढ़ने पर इन चीज़ों के लिए तुम मुझे नहीं ब्लेम कर सकते हो, इन द सेम मैनर यू शुड नॉट blame me for my love making. So he says, next he says, or ruined fortune flout, or don't flout means mock at. Don't mock at me that I have wasted my fortunes for my love. With wealth your state, your mind with arts improve. Take you a course, get you a place. वो क्या कह रहा है कि जाओ तुम अपनी
वर्ल्डली स्टेटस को, अपनी वेल्थ को, इन सब चीज़ को इम्प्रूव करो, आर्ट से अपने माइंड को इम्प्रूव करो, या फिर कोई प्लेस, कोई जगह ऑब्जर्व इन हिज ऑनर और हिज ग्रेस, मीन्स किसी किंग या मेजेस्टी के प्लेस, पैलेस में, या वहाँ पर तुम कोई नौकरी ढूंढ लो, वहाँ पर तुम जाकर उसकी जॉब करो. और द किंग्स रियल और स्टैम्प्ड फेस कंtemplate what you will approve, so you will let me love. वो क्या कह रहा है कि तुम जाओ कोई पोजीशन वगैरह अपनी ऐसी जॉब कोर्स में, इधर अ कोर्स ऑफ स्टडी और अ करियर, तो कह रहा है ऐसा कोई भी अटेंटिव कोर्स या वो तुम ज्वाइन कर लो, लेकिन तुम मेरा पीछा छोड़ दो. दूसरा वो कहता है कि तुम जो हो, तुम इधर कंटेम्पलेट द रियल फेस ऑफ द किंग बाय टेकिंग अ जॉब एट द कोर्ट, और कंटेम्पलेट द किंग्स फेस स्टैम्प्ड ऑन कॉइन्स बाय होर्डिंग वेल्थ. दोनों तरह से जैसे चाहो तुम किंग को ऑब्जर्व कर सकते हो, चाहे रियल फेस में उसकी जॉब लेकर, या वेल्थ को इकट्ठा कर कर तुम उसका फेस दे सकते हो. एंड इट इज़ अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ डन्स विट. एंड अप्रूव मीन्स टू ट्राई what he likes, he can do what he likes, so but let him love, so he should not mind, uh, he should mind his own business, not disturb poet. So here you, in the first stanza, poet is clearly making his friend to stop him disturb. He's trying to stop him, or trying to tell him that not to disturb him or make a fun of him for ruining his wealth, or making love with the person or his beloved. So बार बार वो उसको यही समझा रहा है कि तुम मुझे डिस्टर्ब ना करके अपनी जो लाइफ है उसको जियो, ना कि मुझे बार बार परेशान करो. नेक्स्ट स्टैंजा. Alas, alas, who's injured by my love? The poet is asking that किसको मैंने इंजोर किया है या हार्म किया है मेरी लव मेकिंग से. देन वाई शुड एनीबडी ट्राई टू प्रिवेंट हिज लव मेकिंग. वॉट मर्चेंट शिप्स हैव माई साइट्स ड्राउन. किन मर्चेंट शिप्स को मैंने डुबो दिया है, जो कि मेरे टीयर्स के फ्लड्स में क्या है, बह गई हूँ. हु सेज माई टीयर्स हैव ओवरफ्लोड हिज ग्राउंड. किसकी उसमें फ्लड लाया है. पहले वो कहता है कि किसको इंश्योर किया है, फिर कह रहा है कि किस मर्चेंट शिप को मेरी साइज़ ने बहा दिया है, या फिर कहता है कि मेरे टीयर्स से कहाँ पर बाढ़ आ गई है, ऐसा कौन ब्लेम कर सकता है. वाई डिड माई कोल्ड कोल्स अ फॉरवर्ड स्प्रिंग रिमूव. व्हेन डिड द हीट्स विच माई वेन्स फिल एड वन मोर टू द प्लेगी bill. Soldiers find wars and lawyers find out still. Litigious men, which quarrels move, though she and I do love. It means कि किसी भी जगह उसके आंसुओं से बाढ़ नहीं आई है. Neither his cold sighs have prolonged the winter. विंटर को लंबा कर दिया हो और स्प्रिंग को आने से रोका नहीं है मेरी साइज ने. एंड द हीट, that warmth of his love making, or the burning veins, they have not taken anyone's life by the plague. उसने कोई प्लेग इंड्यूस नहीं किया है उस हीट ने, और ना ही किसी की जान गई है. एंड डिस्पाइट हिज लव द वर्ल्ड गोज ऑन एज यूजुअल. सोल्जर्स हैं वो वॉर पे जा रहे हैं, लॉयर्स को उनके क्लाइंट्स मिल रहे हैं, तो किसी को भी क्यों ऑब्जेक्शन है कि मैं जो हूँ क्या कर रहा हूँ, यानी वाई दे हैव ऑब्जेक्शन टूवर्ड्स माई लव मेकिंग. तो टोटली उसने ये आर्गूमेंट्स दिए हैं कि जब मेरे लव मेकिंग से किसी को भी कोई नुकसान नहीं हो रहा, कोई बाढ़ नहीं आ रही है, किसी को इंजरी नहीं कर रहा मैं, और ना ही किसी जो वर्ल्डली जो रूटीन है उसमें कोई चेंजेस आ रहे हैं, देन वाई पीपल आर जस्ट इंटरफेयरिंग इन माई लव मेकिंग. तो इस तरह से वो आर्गूमेंट्स यहाँ पर दे रहा है सेकेंड स्टैंजा में. द थर्ड स्टैंजा सेज, call us what you will, we are made such by love. Now the poet saying that the poet and his beloved can be called whatever he likes. He can call the friend, he is telling the friend that वो उसको उनको जो चाहे वो बुला सकता है, जिस नाम से चाहे
बुला सकता है, बिकॉज दे आर मेड सच बाय लव। जो कुछ भी है वो उस लव की वजह से ही है। एंड ही सेज कॉल हर वन मी अनदर फ्लाई। वो कहता है हमें तुम फ्लाई बुला लो, मक्खियाँ बुला लो, जो है हम, मैं एक मक्खी हूँ और जो बिलवड है द अदर वन, एंड दे मूव अराउंड ईच अदर, एक दूसरे के साथ ही वो रहते हैं। वी आर टेपर्स टू एंड एट आर ओन कॉस्ट डाई, एंड वी इन अस फाइंड द ईगल एंड द डव। अब यहाँ पर टेपर्स, टेपर्स क्या होती है? कैंडल होती है। सो ही इज सेइंग दैट वी आर टेपर्स एंड वी डाई फॉर ईच अदर, वी बर्न इन ईच अदर्स लव। तो एक चीज़ यहाँ पर बताएंगे, जो टेपर्स का जो एग्जाम्पल दिया है, एंड द वर्ड डाई इन Elizabethan time was used for consummation of love act also. So it was commonly supposed that the act of love shortens life. तो वैसे ही कैंडल का जो एग्जाम्पल है कि जैसे जैसे बर्न होती है वो छोटी होती जाती है, तो वैसे ही लव मेकिंग का जो एक्ट है वो धीरे धीरे लाइफ को शॉर्ट करता जाता है। नेक्स्ट द एग्जाम्पल ऑफ ईगल एंड डव। ईगल जो है एक स्ट्रॉन्ग बर्ड है, ठीक है, और जो डव है वो माइल्ड है। तो यहाँ पर ये चीज़ एग्जाम्पल ये देती है कि दोनों में क्या है, दोनों की क्वालिटीज़ हैं। ईगल इज़ अ बर्ड ऑफ प्रे विच किल्स अदर्स एंड डव इज़ इनोसेंट एंड मीक, बट द पोएट एंड हिज बिलवड combine in themselves qualities of both eagle and dove. They are both gentle like the dove. Both of them are also tyrannical and destructive like the eagle. They prey upon each other. In the process of love making, they prey upon each other and destroy each other. And their love is self-destructive and self-consuming. So, next example of the phoenix. The phoenix riddle hath more wit by us. We two being one are it. So to one neutral thing both sexes fit. अब फिनिक्स की जो रिडल है यहाँ पर वो कह रहा है कि एक मिथिकल बर्ड होती है फिनिक्स, एंड देयर इज ओनली वन फिनिक्स इन द वर्ल्ड एट any one time, and when the term of life is over it burns itself and rises once again from its ashes as fresh as alive as before. तो ये जो रिडल है वो भी इनके अपने आप से पोएट ने कंपेयर की कि फिनिक्स की तरह ही हम खुद को सेल्फ कंज्यूमिंग भी हैं, लेकिन हम खुद से ही वापस उसी में रीबर्थ को यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा है पोएट। तो उसी तरह से क्या है, दोनों टू बॉडीज होते हुए भी एक हैं। सो द phoenix reproduce itself without its mate of the opposite sex. So here the riddle, the mystery is solved. ये दोनों एक ही हैं, एक ही बॉडी में वो सर्वाइव करते हैं अलग अलग होते हुए भी, जैसे कि फिनिक्स में भी दोनों सेक्सेस कंबाइन होते हैं। एंड इनके एग्जाम्पल से जो फिनिक्स की रिडल है बहुत ईजिली क्या है, सॉल्व हो सकती है। We die and rise the same and prove mysterious by this love. So by their love, the riddle of phoenix and how it perpetuates its species, though there is never more than one phoenix in existence at a time, still it rises from the ashes, makes more sense because of us. ये जो लास्ट लाइन वो कह रहा है कि इससे हमारे हमारे जो एग्जाम्पल है हमको देखकर लोगों को ये पता लगेगा कि फिनिक्स कैसे सर्वाइव करती है और नए जो स्पीशीज़ है उसको कैसे जन्म देती है। तो वही हमारा एग्जाम्पल ले सकते हैं। एंड आर टू सेक्सेस फिट टुगेदर टू परफेक्टली टू फॉर्म अ बीइंग ऑफ नो सेक्स दैट after we die we come to life again, the same being that we were before, just as the identical phoenix rises from its own ashes. And this love makes us mystery worthy of reverence. So इस वजह से हमें क्या है, वो कह रहा है कि फिनिक्स की स्टोरी के साथ प्योरली आप कंबाइन करके देख सकते हैं या उससे क्या है मैच करके देख सकते हैं, तो उसकी जो मिस्ट्री है वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। तो ये स्टैंजा भी यहाँ पर कंप्लीट होता है, लव से शुरू और लव पर ख़त्म, जैसे कि पहले वाले स्टैंजाज हुए थे। नेक्स्ट
स्टैंजा में क्या कह रहा है पोएट? वी कैन डाई बाय इट इफ नॉट लिव बाय लव, एंड इफ अनफिट फॉर टोम्स एंड hearsay our legend be, इट विल बी फिट फॉर वर्स। मीन्स फिनिक्स की जो स्टोरी है उसको तो इन्होंने अपने लव से एक्सप्लेन कर दिया, अपनी यूनिटी से, अपनी कंज्यूमेशन ऑफ लव से एक्सप्लेन करने की बात कही है। अब वो कह रहा है कि अगर हम इमॉर्टल नहीं हो सकते हैं, इफ़ वी दे कैन नॉट एक्वायर इमॉर्टलिटी बाय देयर लव, दे कैन एटलीस्ट डाई बाय इट, मतलब कम से कम लव के लिए मर सकते हैं। एंड द स्टोरी ऑफ देयर लव मे नॉट बी कार्व्ड ऑन टोम्स, हो सकता है उनके लिए टोम्स ना इरेक्ट किए जाएं या मॉन्यूमेंट्स जो है वो ना बनाए जाएं। हो सकता है हिस्ट्री में भी उनको कोई जगह ना मिले उनकी लव स्टोरी को, बट दे विल बी रिमेंबर्ड इन सॉनेट्स एंड लव लिरिक्स। वर्ड्स क्या होती है? पोइट्री होती है। सो थ्रू पोइट्री और लव लिरिक्स they will be remembered for their love. If no piece of chronicle we prove, we'll build in sonnets and pretty rooms. As well, a well-wrought urn becomes the greatest ashes as half acre's tomb. And by these hymns all shall approve us canonized for love. तो अब टोम्स और जो मॉन्यूमेंट्स है वो नहीं बन रहे हैं, चाहे उनकी हिस्ट्री नहीं लिखी जा रही है, बट ही सेज दैट ही विल बी रिमेंबर्ड थ्रू sonnets and love lyrics, and by means of such lyrics which would be hymn to their love। जैसे ही गॉड की प्रेज में हिम्स होती हैं, वैसे ही जो ये लव लिरिक्स हैं वो उनके लव के लिए हिम्स का ही काम करेंगी, एंड दे वुड बिकम इमॉर्टल एंड पीपल वुड कॉल देम सेंट्स ऑफ लव। यहाँ पर सॉनेट्स प्रिटी रूम्स में क्या है, ब्रीफ कंसीट का जो है यूज़ किया है डन ने। एक्चुअली रूम्स का मीनिंग जो है इटालियन में स्टैंजा होता है। सो हियर ही इज़ ट्राइंग टू फाइंड रूम इन सॉनेट स्टैंजाज, हिज प्लेस in stanzas. And next he says, well wrought urn becomes greatest ashes as half acre tombs। तो ये जो अर्न है, ये पोइट्री या लिरिक्स की जो अर्न्स है या जो वॉसेस हैं वो उतने ही अच्छे हैं बरियल के लिए जितने अच्छे किसी हाफ एकड़ टोम में जो मॉन्यूमेंट्स बनाए जाते हैं वो होते हैं। तो जो ये वर्सेस का जो फॉर्म है, उन फॉर्म में वो अर्न का उसको शेप दिया है वर्सेस के रूप में देख रहा है पोएट, जिसमें उनको बरी किया जाएगा। मीन्स सॉनेट्स एंड जो उसकी लव स्टोरी की जो पोम्स है वो उनका क्या होंगी, मॉन्यूमेंट्स होंगी या टोम्स का काम करेंगी, एंड लाइक दैट दे विल सर्व एज अ हिम। नेक्स्ट ही सेज, एंड दस इन्वोक अस यू whom reverend love made one another's hermitage, you to whom love was peace that now is rage, who did the whole world soul contract and drove। अब यहाँ पर वो कह रहा है, pray to us, address us, reverend means honored, worthy of respect, and made another's hermitage। एक hermitage वो होती है जहाँ पर एक सेंट रहता है, तो वो जो लवर्स हैं वो एक दूसरे की क्या है, hermitage है। they make their world around each other। So he says that the body and the soul of each of them dwell in the body of the other। So he is saying people in the coming generation would address them as saints of love who made each other their pilgrimage, and for each of them the other was a world in himself or herself। they saw the reflection of the entire world in each other's eyes। ये चीज़ हमने सनराइजिंग में भी है, जहाँ पर टोटल जो वर्ल्ड है वो एक दूसरे में समा जाती है, या जो आसपास का जो एरिया है वो एक ही जगह आकर पूरी वर्ल्ड को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। इनटू द ग्लासेस ऑफ आवर योर आइज सो मेड सच मिरर्स एंड सच स्पाइज दैट दे डिड ऑल यू एपिटोमाइज, countries, towns, courts beg from above a pattern of your love। So they just perform the miracle of contracting the world, while for others love is a cause of
sorrow and suffering. To them love brought peace and serenity. उनके लिए लव पीस और सेरेनिटी है, दूसरों के लिए क्या है, वो एक तरह से सफरिंग है. And they would be regarded canonized saints of love. So people would ask them to pray to God on their behalf to send them also a love like theirs. जो एक्सपर्ट सेंट्स होते हैं या जो प्रीस्ट होते हैं उनको हम पे करते हैं कि आप हमारे लिए भगवान से प्रे करो. तो उसी तरह से उसी चीज़ को, उस सिस्टम को जो है यहाँ डन ने कोट किया है कि वो जो लोग हैं वो हमें एक मीडिएटर बनाकर गॉड को, लव के गॉड को प्रे करने के लिए कहेंगे कि उनकी लाइफ में भी इसी तरह का जो लव है वो उनको भी मिल जाए, as they have become the saints of love. So people would address their prayers to them and ask them to pray to God on their behalf to send them love as deep and intense as their own love. God should enable them to love as intensely as Donne and his beloved loved each other in their own life. Told you in this stanza, hermitage means the abode of a saint. But here now is rage. Now means in the time to come, not the present time. So present time की बात नहीं कर रहा बल्कि आने वाले समय की बात हुई है पूरे स्टेंजा में. Rage is the source of agitation, sorrow and suffering. जैसा कि मैंने बताया कि लोगों के लिए लव क्या है, सफरिंग या सॉरो का रीज़न है, बट पोएट और उसकी बिलवड के लिए नहीं है. ड्रोव मीन्स cramped, okay. And the other word is pattern. The last line, pattern is model. As the lover and his beloved, the poet and his beloved are the model. As a saint, they are the model of love saints or saints of love in this poem. I hope students, viewers, you all have understood this poem very well. पूरा मैंने आपको एक विद मीनिंग्स एंड ऑल आपको समझा दिया है, कोई प्रॉब्लम आपको आनी नहीं चाहिए. सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग एंड एंजॉइंग लिटरेचर. And if you like the video, don't forget to give a thumbs up and don't forget to share with all the friends you know and your family. Bye bye.